Meet Ms. Pooja Upadhyay. Ms. Pooja Upadhyay, a seasoned primary teacher at Vibjir High, Yelhunka, is widely admired for her graceful presentation style and creative flair in the classroom and beyond. A BCom graduate currently pursuing her B.Ed at Bangalore City University, she blends academic depth with a compassionate approach to teaching, earning the trust and affection of her students over many years of dedicated service. Her commitment to professional growth is evident not only through her participation in the online sessions by Extra Mile Education and Training, but also through her repeated role as a moderator for several of their online programs. Her poised delivery and imaginative engagement techniques have consistently elevated the learning experience for participants, making her a valued contributor to the educational community and a true asset to her institution. Hearty welcome, Ms. Pooja. Please proceed. The stage is yours. Yes, Ms. Pooja, please unmute and proceed. You can start. Yes, sir. Thank you, sir, for this. इतना अच्छा परिचय कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, sir. Madam, you are not audible. Echoing. You can speak through the mobile. You can disconnect the other one. Okay, sir. Now it is okay, sir. You are audible, but echoing because of the other connection. You have to mute the other one. It did, sir. 1 minute, sir. I will leave from here. Yeah. Now is it okay, sir? Yes, please go ahead. Please go. Okay, sir. Thank you. शिक्षा के दीप जलाने वाले सभी शिक्षकों को शुभ संध्या। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आयोजित किए गए आभासी प्रशिक्षण सत्र का आरंभ करते हुए मैं पूजा उपाध्याय आपकी मॉडरेटर के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मिलिंद जाधव जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सत्र को गतिमान करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता पूर्वक इसका पालन किया जाएगा। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह अपने माइक म्यूट पर रखें। प्रतिभागी अपने संवाद चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। स्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के अंत में सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें और अपने नाम पुकारे जाने पर वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट एवं फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की भावना की अपेक्षा है। कार्यक्रम संचालन हेतु मुझे चयनित कर यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस संस्था के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर सलाम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बहुमुखी प्रतिभा में व्यक्तित्व रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समुदाय को एक अद्भुत मंच देने का प्रशंसनीय कार्य बेहद सफलतापूर्वक कर रहे हैं। डॉक्टर सलाम एक शिक्षाविद हैं जिनके पास शैक्षिक क्षेत्र में 30 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आप सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर भी हैं। बीटेक अब एक्स्ट्रा माइल शिक्षा और प्रशिक्षण के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत है। मैं गर्व और पूरे सम्मान के साथ सभा में उपस्थित सभी हिंदी सेवियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और हम सभी को संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू सलाम सर। धन्यवाद पूजा मैम। Respected resource person Milind Jadhav sir.
and all the enthusiastic and respected participants, Hindi Premio, right? Thank you so much for joining. Well, today Mr. Milind has offered a very wonderful topic. So at the outset, on behalf of everybody, I would like to take this opportunity to thank him for coming up with this wonderful, topic, because this is the need of the hour. And there has been, various studies and surveys happening around India, that the pressure is mounting so much in children, so that it is affecting their studies because of the passive way of learning. So we have to make it very active learning. The learning should be very active, engaging, and interesting. And the best way to make them engage is the inquiry-based learning. So they have to, keep asking questions, and they have to find out answers. What we usually do is we give the answer, they copy it, and they will conduct the examination. Gone are those days. Those days are gone, expired. So we have it is a challenge now for every educator to make the teaching learning a very self-learning process, wherein the teacher is just a scaffolder, guiding the child to learn themselves through inquiry-based learning. So thank you so much for joining. Milinsi, you are there? I think Milind sir got disconnected. He's there. Milind sir, yeah. So thank you everybody for joining. Let's listen to Milind sir. Over to moderator. Pooja ma'am, over to you. Thank you. धन्यवाद सर। इस उम्मीद से कि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी तरह से प्राप्त होता रहे। हम सत्र को अग्रसर करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के पथ प्रदर्शक और हम सबके प्रिय श्री मिलिंद जाधव जी का, जिन्होंने इस मंच पर संसाधन कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर इसे खास बना दिया। आप हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं के अध्यापक हैं। विगत 29 वर्षों से सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। मुंबई सल्तनत ऑफ ओमान एवं किंगडम ऑफ बहरीन में आपने अध्यापन कार्य किया। संप्रति आप राजकोट, गुजरात स्थित बहुविख्यात शैक्षिक संस्था तथा गैलेक्सी एजुकेशन सिस्टम टीजीएस के कैम्ब्रिज विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आपने शिक्षा से संबंधित रचनात्मक लेखन एवं पाठ्यक्रम सॉल्यूशन से संबंधित कम से कम 25 किताबों का लेखन किया और वे चेतना पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित हुई। आप एक वक्ता, लेखक एवं कवि हैं। आपने अब तक अध्यापकों के लिए 50 से ऊपर कार्यशालाओं का आयोजन किया। आपको रोटरी क्लब द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार, दीनदयाल संस्था द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार, रवीन्द्र शिक्षक पुरस्कार, बीएनएचएस द्वारा शिक्षक सृजन पुरस्कार, ओमान राजदूतावास द्वारा सृजन कवि पुरस्कार प्राप्त हुए। आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के कर कमलों द्वारा मुंबई में शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती आपके साहित्यिक गुरु थे। उनका आपको 8 वर्षों तक स्नेह मिला। उनके मार्गदर्शन में आपने जयशंकर प्रसाद जी की महान साहित्यिक कृति कामायनी का मंचन किया। आपने कुछ समय तक आकाशवाणी पर भी साक्षात्कारकर्ता की भूमिका बखूबी निभाई थी। आपने बहरीन, ओमान, दुबई, कतार आदि गल्फ देशों में ही नहीं, अपितु कल्चरल कोऑर्डिनेटर के तौर पर सिंगापुर, मलेशिया, जापान, यूएसए, यूरोप, जर्मनी, भूटान आदि देशों में भी भ्रमण किया। अब मैं श्री मिलिंद जी से निवेदन करती हूँ, हमारा आज का जो विषय है, गतिविधि के माध्यम से अन्वेषण आधारित शिक्षण, छात्रों में जिज्ञासा और सोच कौशल का विकास आदि के बारे में हम सबको अपने विस्तृत ज्ञान से अवगत कराएंगे और हम सब आपके ज्ञान से प्रकाशित होंगे। ओवर टू मिलिंद सर। मिलिंद सर। अच्छा, नमस्ते जी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी आप सर। सभी मुझे सुन रहे हैं?
जी नमस्ते सर। पूजा बहन, नमस्ते आपने सर। बखूबी से मेरा परिचय करवाया। धन्यवाद जी। धन्यवाद सलाम सर। आप तो प्रेरणा स्रोत है, एक्स्ट्रा माइल रिसोर्स के फाउंडर्स हैं, आप संस्थापक हैं, और आपके मार्गदर्शन में हम इस प्रकार की अनेक कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में बिजू सर, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप सभी की सहमति है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर। जी सर, आज किसी कारणवश सर बीजू सर ने ज्वाइन नहीं किया है हमें। अच्छा जी, ओके किसी जी, ओके जी, कारणवश। यस सर। ओके जी, चलेगा। आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर, जी यस वॉइस सर। सर। ठीक है? आवाज ठीक है मेरी? जी सर, यस। ध्वनि आ बिल्कुल। रही है आपके पास? जी सर। चलिए, आप सभी का स्वागत है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम अपने इष्ट देवता को नमन करते हुए करते हैं। तो आइए, मैंने ये सरस्वती वंदना लिखी है, उसे आज हम पढ़ते हैं और अपने अपने इष्ट देवता को आराध्य को हम मन में उनका स्मरण करते हैं। जी बहन, आप पढ़ेगी कविता? जी सर, पूजा जी, बिल्कुल। आप कविता पढ़ेगी? हाँ जी सर। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, यस। वीणा पाणी वरदा भवानी, शुभ वासना जग की ज्योति, ज्ञान दीप निजकर से जलाकर कर दे जीवन उज्जवल प्रीति। हंसवाहिनी मंदस्मिता स्वर सुधा बरसाए मात, तेरे चरण कमल की वंदन दे मन को निर्मल प्रभात। श्वेत कमल पर विराजे शारदा, श्वेत चंद्रिका सी छवि, तेरी कृपा से पुलकित होता हर कण में नव ज्योति रवि। वागीश्वरी भारती देवी वर दे मधुर विवेक प्रकाश, तेरे चरणों से जीवन पाता सत्य सुगंध सुरभि आभास। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा लिखा है यस। आपने। वीणा पाणी वरदा भवानी, शुभ्र बसना जग की ज्योति, ज्ञान दीप निज कर से जलाकर कर दे जीवन उज्जवल प्रीति, कर दे जीवन उज्जवल प्रीति। हम अपने अपने आराध्य को नमन करते हैं और मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर जो उपस्थित है सभी शिक्षक है, उत्साही है, प्रेरणावान है, उन सब शिक्षकों को मैं नमन करता हूं। और उन सभी शिक्षकों को मैं समर्पित ये मुक्त छंद काव्य मैंने लिखा है, आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। जी हाँ, मैं शिक्षक हूँ। जी हाँ, मैं शिक्षक हूँ। मैं सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, मैं भविष्य गढ़ता हूँ। मेरे शब्दों से केवल अक्षर नहीं जन्मते, बल्कि दृष्टि जगती है, विचारों को उड़ान मिलती है। मैं शिक्षक हूं, समय की चाल को पहचानता हूं। आज मेरी कक्षा में सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं, बल्कि स्क्रीन की उजली रोशनी है, जहां हर बच्चा ज्ञान का खोजी है। मैं शिक्षक हूं, कृत्रिम बुद्धि मेरी सहयोगी है, वे आंकड़ों में छुपे संकेत बताती है, और मैं उन संकेतों से हर विद्यार्थी की प्रतिभा को विशेष मार्ग देता हूं। एआई मशीन है, एआई मशीन है, पर दिशा देना मेरा धर्म है। मैं शिक्षक हूं। जी हाँ, मैं शिक्षक हूं। पुस्तकों से लेकर बादलों यानी क्लाउड तक हर स्तोत्र से जोड़ता हूं। मैं परंपरा की मिट्टी को तकनीक की धूप में सुखाता हूं, और उसी से नए सपनों की ईंटें बनाता हूं, और उसी से नए सपनों की ईंटें बनाता हूं। मैं शिक्षक हूँ। जी हाँ, मैं शिक्षक हूँ, ज्ञान का प्रहरी, मानवता का शिल्पकार। मैं बच्चों को केवल अंक नहीं देता, ध्यान रहिए, मैं बच्चों को केवल अंक नहीं देता, मैं उन्हें पहचान देता हूँ कि वे दुनिया बदल सकते हैं। मैं शिक्षक हूँ। जी हाँ, मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वर्तमान का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य भविष्य का निर्माता हूँ, बल्कि भविष्य का निर्माता हूँ। आप सभी की प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा कि आपको ये कविता कैसे लगी।
ये कविता मैंने आप सभी शिक्षकों को समर्पित की है। चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये कविता कैसे लगी। हाँ जी, वेरी गुड, नाइस सर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। यस यस, बहुत बहुत सुंदर, आप सभी को समर्पित है ये कविता आप सभी को। उत्साही जो शिक्षक है, आप ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, आप सभी को ये कविता मैं समर्पित करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कन्वेंशन आधारित शिक्षा। अब ये क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसे कहते हैं? हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को ताकि उनकी क्यूरियासिटी जो है, जिज्ञासा जागृत हो सके, उनमें चिंतनशीलता का विचार हो सके। क्या करें? क्या है ये विधि? इस विधा के बारे में हम क्या जानते हैं और इसे हम हिंदी भाषा के साथ किस प्रकार समन्वित कर सकते हैं? तो आज हम ये जानेंगे अलग अलग गतिविधियों के जरिए कि ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है। एक स्टार्टर गतिविधि आपके सामने, आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। जरा इस चित्र को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इस चित्र को। क्या है इस चित्र में? मैं सभी की प्रतिक्रिया चैट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस चित्र में क्या है, क्या हो रहा है। यस, लिखिए चैट बॉक्स के माध्यम से। Fruits, fruits. In the chat box, somebody has written fruits. Vanita ma'am has written fruits. यस, Pooja बहुत ma'am, you can बहुत take up. बहुत सुंदर। क्या है? फ्रूट्स है, फल है, किसी ने लिखा है कि फल है। हाँ, प्रमिला शाह जी लिखती है डाली रोककर रखा है फ्रूट्स, ओके, पेड़ है। या जी 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 जी, क्या आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा जगी इस चित्र को देखकर? क्या आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है? हाँ जी, पेड़ है, कोई लिखते गिरते गिरते हुए सेब को आ, देखना, सर, फल कोई नीचे लिखता है गिर रहा है, सही बात है, ही फल इज नीचे ट्राइंग गिर टू रहा है। प्लग। यस यस, जुएरा बहन जी लिख रही हैं। जुएरा बहन जी, आपका स्वागत है। न्यूटन का इन्वेंशन, फ्रूट्स नीचे पड़ना, यस, आपने गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ी, सही बात है। मनुष्य फल को देखकर, मन आइंस्टाइन और एप्पल, ओके। राजलक्ष्मी मैम भी बोल रही है न्यूटन लॉ सर। यस यस, न्यूटन लॉ है, गुरुत्वाकर्षण है। तो देखो, तो इस फल को, पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, ये सभी ने देखा, लेकिन न्यूटन ने जब उसे देखा कि पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, उसके पहले भी फल नीचे ही आता था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जग गई, फल नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये फल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो वो जिज्ञासा, तो जिज्ञासा जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मूलाधार है। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। जैसे आपने लिखा ये न्यूटन का लॉ है, किसी ने कहा कि फल नीचे आ रहा है, मनुष्य देख रहा है, वैसे मेरे भी मन में एक जिज्ञासा उठी इस चित्र को देखकर, और मैंने उसे कविता में गढ़ा। सुनेंगे आप? क्या आप सुनना चाहते हैं सभी? हाँ जी, पूजा बहन, आप सुनना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल सर, और ठीक, मुझे पता है कि देखो सब एक्साइटेड देखो, होंगे आपको सुनने के लिए। यस, एक पका फल टूटा डाल से, एक पका फल टूटा डाल से, नीचे गिरा कहीं पर, एक आदमी ऊँग रहा था लेटा हुआ वहीं पर। यो तो फल का नीचे गिरना कोई नया नहीं था, लेकिन उस पर ध्यान किसी का पहले गया नहीं था। उसे टपकता देख हुई थी जिसको यो हैरानी, उसे टपकता देख हुई थी जिसको यो हैरानी, वो था न्यूटन अपने युग का बहुत बड़ा विज्ञानी। ढूंढ निकाला उसने धरती का गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण धरती खिंचती सब कुछ अपने अंदर।
जो दुनिया को, ध्यान दीजिए, जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, उनके कारण ही तो मानव बढ़ता प्रगति के पथ पे, उनके कारण ही तो मानव बढ़ता प्रगति के पथ पे। ये नवाचार है। जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, न्यू एंगल से दुनिया को देखना, उसी तरह जिस प्रति न्यूटन ने देखा, एक नई दिशा से, नए विचार से, न्यू एंगल से उसने उस फल की तरफ देखा, उसी तरह एक शिक्षक को न्यू एंगल से, नवाचार की दृष्टि से अध्यापन अध्ययन प्रणाली में प्रयोग करने हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की ओर। हाँ जी, तो क्या जाना हमने कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है, इसका मूलाधार जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। क्या है? जिज्ञासा है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जी? अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की ओर। तो इसकी कौन कौन से स्टेप्स है, क्या क्या चरण हैं, कैसे करें, कैसे हिंदी के साथ इसका समन्वय करें। हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है, अन्वेषण आधारित शिक्षा को हम हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा व्याकरण के साथ किस प्रकार जोड़ सकते हैं, तो इसके ये चरण हैं। उस चरणों को, उनके चरणों के बारे में अभी हम जानेंगे, कौन कौन से ये स्टेप्स है। तो देखिए, हमने सर्वप्रथम जाना, समझा कि अन्वेषण आधारित शिक्षा का, आईबीएल का मूल आधार जिज्ञासा है। जिज्ञासा जब छात्रों के मन में उत्पन्न होगी, तब छात्र स्वयं प्रश्न पूछेगा। जब हम कक्षा में जाएंगे और पढ़ाने से पहले स्टार्टर एक्टिविटी के तौर पर कुछ जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी से रिलेटेड कुछ क्लास में एक्टिविटी 1 से 2 मिनट की, 1 मिनट की कोई गतिविधि नहीं करेंगे, तो छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। और यदि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, तो छात्र प्रश्न नहीं पूछेगा, अध्ययन अध्यापन प्रणाली की ओर आकर्षित नहीं होगा। और जब उसके मन में जिज्ञासा का निर्माण होगा, तब छात्र स्वयं अपने आप प्रश्न पूछेगा। जब वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली प्रश्न पूछेगा, तब वो उस प्रश्न की जांच करेगा, उस समस्या को हल करने के लिए प्रयास करेगा। और जब उस प्रयत्न, समस्या को हल करने का वो प्रयास करेगा, तब वो आगे निष्कर्ष की ओर बढ़ेगा, जो कार्य न्यूटन ने किया। तो इसीलिए हर एक शिक्षक के पास ये अन्वेषण आधारित शिक्षा का नवाचार होना चाहिए, ताकि छात्रों में जिज्ञासा निर्माण हो सके, छात्र स्वयं अध्ययन अध्यापन प्रणाली की ओर आकर्षित हो सके, स्वयं पढ़ सके। और इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षक केवल मार्गदर्शक, गाइड, सहयोगी, सुविधा करता। उद्देश्य क्या है? सीखना। इस अन्वेषण आधारित शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि सीखना। छात्र अपने आप सीखेगा, स्पॉन्टेनियसली। जब वो अपने आप सीखेगा ना, तब आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं, छात्र सीख रहा है, वो अपने आप रोचक होगा, सार्थक होगा, और वो दीर्घकालिक भविष्य तक छात्र के मन में रहेगा, स्मृति में रहेगा। शिक्षाविद है जॉन लॉक, जर्मन के बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट जॉन लॉक कहते हैं, जो पढ़ाने का ढंग जानता है, जो पढ़ाने का ढंग जानता है, वह शिक्षा का रहस्य भी जानता है। इसी में ही तो नवाचार छिपा है, इसी में ही तो ये अन्वेषण आधारित शिक्षा आधारित है, उस पर बसी हुई है। देखिए आगे, तो हमने जाना कि जिज्ञासा जब छात्र के मन में उत्पन्न होगी, तब छात्र प्रश्न पूछेगा। छात्र क्या पूछेगा? प्रश्न। जब छात्र स्वयं प्रश्न पूछेगा, तब उस समस्या का हल निकालने के लिए वो अपने आप प्रवृत्त होगा, आगे आएगा, खोज करेगा। जैसे न्यूटन ने किया, जो कार्य आइंस्टाइन ने किया, E=mc² दिया, तो वो प्रश्न उसके मन में उठा, उभरा, उसका उत्तर उसने ढूंढ निकाला।
और जब उसकी वो खोज करेगा तब वो अपने आप सीखेगा। अपने आप, जब हम अपने आप कुछ सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। सही बात है पूजा जी? हाँ जी। बिल्कुल जब सही। हम जब बिल्कुल हम सही। अपने आप सीखते हैं तब उस चीज को हम कभी नहीं भूलते। वो चिरकाल तक, हमेशा तक, मरते दम तक, हमारे अंतिम सांस तक हमारे साथ रहती है। जो कुछ हमने सीखा है उसे हम भूलते नहीं। तो देखिए, अन्वेषण आधारित शिक्षा का मूलाधार जिज्ञासा है। मैं प्रश्न करूंगा आप सभी से। जिज्ञासा है। जब छात्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो अपने आप प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा, समस्या का समाधान निकालने के लिए वो तरह तरह की मार्ग अपनाएगा, विकल्प अपनाएगा, और जब उसे समाधान मिलेगा तो वो सीखेगा। अब सवाल यह है माय डियर टीचर्स कि ये जिज्ञासा हम छात्रों के मन में कैसे क्रिएट करें? हाउ टू क्रिएट दिस क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट? और ये क्यूरियोसिटी भी एज अप्रोप्रिएट होगी। 1 to 5 लेवल की अलग है, 6 to 8 की अलग होगी, 9 to 10 के लिए अलग प्रकार की एक्टिविटीज होगी। तो ये क्यूरियोसिटी जब हमें क्रिएट करनी है छात्रों में, तो शिक्षक कैसे अपने शिक्षा में नवाचार की प्रणाली को अपनाएगा? तो उसे अभी हम जानते हैं कि कैसे, हाउ टू डेवलप दिस क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड माइंड्स। देखो किस प्रकार की जिज्ञासा को आप छात्रों के मन मस्तिष्क में उसका हम संस्कार कर सकते हैं। तो देखिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की ये प्रक्रिया है, प्रोसेस। पहला क्या लिखा है बहन, पढ़िए। पहला चरण, स्टेप क्या है जी सर। पूजा जी? जी सर। जिज्ञासा क्या आप लिखा सुन है? पा रहे हैं सर? हाँ ओके सर। हाँ, जय, सुन रहे। विषय या समस्या, प्रश्न, क्यों, कैसे, क्या। जानकारी एकत्र करते हैं, प्रयोग करते हैं और चर्चा करते हैं। खोज से मिली जानकारी को जोड़कर निष्कर्ष बनाते हैं और अनुभव और खोज के कारण प्राप्त ज्ञान गहरा होता है। यस, देखिए, वेरी गुड बहन। पहले लिखा है चरण पहला, पहली स्टेप्स है जिज्ञासा, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। छात्रों के मन मस्तिष्क पर जिज्ञासा का संस्कार करना। तो किस प्रकार होगा जिज्ञासा, हम कैसे उत्पन्न करेंगे? किस प्रकार छात्र हमें प्रश्न पूछेगा? दूसरा है प्रश्न उत्पन्न करना। फिर प्रश्न अपने आप छात्र के मन में निर्माण होगा, क्यों, या ऐसा क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या, किस लिए। इस प्रकार के प्रश्नार्थक सर्वनाम छात्र के मन में उभरेंगे। छात्र उसकी खोज करेगा, जांच करेगा, जानकारी को एकत्रित करेगा, प्रयोग करेगा, चर्चा करेगा आपस में, समूह गतिविधि। तब छात्र की नई समझ विकसित होगी। खोज से मिली जानकारी इंटरनेट की सहायता लेगा, पुस्तकालय में जाएगा, अपने सहकर्मियों, अपने सहपाठियों के साथ वो बातें करेगा, वार्तालाप करेगा, ज्ञान का आदान प्रदान करेगा। तब वो निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तब सीखना स्थायी होगा। और जब सीखना स्थायी होगा, परमानेंट, जो कुछ सीखा है परमानेंट उसके ध्यान में रहेगा, तब वो अनुभव संपन्न बनेगा। वो खोजी होगा। फिर वो 2 लाइन मैंने बताई, जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, उनके कारण ही तो मानव बढ़ता प्रगति के पथ पे। तो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा, उसका व्यक्तित्व बहुआयामी होगा, और वो भाषा में रुचि लेगा। देखो, हिंदी में रुचि लेना बेहद जरूरी है। एआई की इस दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में, तकनीकी की इस दुनिया से छात्र हिंदी पढ़ना नहीं चाहता। हिंदी क्या, मराठी क्या, संस्कृत क्या, रीजनल लैंग्वेज वो पढ़ना नहीं चाहता। तो हमें उसे आकर्षित करना है। अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव, ये प्रलोभन हमें उसे देने हैं। तो ये अन्वेषण आधारित प्रक्रिया भी एक प्रकार का प्रलोभन है। कक्षा में जाते ही हमें जिज्ञासा आधारित कुछ गतिविधि, कई प्रकार की गतिविधियां हैं, वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। तो अब आज हम उन्हीं गतिविधियों के बारे में जानेंगे।
यहाँ पर कई मेरी बहनें होगी कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उनके लिए भी मैं कुछ गतिविधियां लेकर आया हूँ। कक्षा 6 से 8 की जो बहनें हैं, भाई है, उन सब के लिए भी मैं गतिविधियां लेकर आया हूँ। कक्षा 9 और 10 के लिए भी गतिविधियां मैं लेकर आया। तो सभी के लिए है अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, एज अप्रोप्रिएट। बराबर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि अध्यापक का स्थान समाज में सशक्त एवं प्रभावी होता है। अध्यापक का स्थान समाज में सशक्त एवं प्रभावी होता है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भौतिक परंपराएं एवं तकनीकी कौशल संचारित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वह सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करता है। तो वे सब, तो इस चरण में ये सारी विशेषताएं यहाँ पर उपस्थित, इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी अध्यापकों के पास है। तब हम आगे बढ़ते हैं गतिविधि की ओर। तो हमने देखा कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टोटली विद्यार्थी केंद्रित है। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है छात्र को। इट इज कनेक्टेड विद द रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन से जुड़ी है। छात्र खोज, शोध, अन्वेषण का अवसर होगा, खुद प्रयोग करेगा। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास होगा। छात्र की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आलोचनात्मक, क्रिटिकल एनालाइज वो करेगा कि सचमुच ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इस पर वो सोचेगा। तो देखो अभी हम जानेंगे इस आईबीएल के चरण, जैसे मैंने बताए, जिज्ञासा जगाना, परिकल्पना टू मेक हाइपोथेसिस, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अन्वेषण, खोज करेगा, इन्वेस्टिगेट, नया ज्ञान निर्मित करेगा, ही विल क्रिएट न्यू नॉलेज। खोज पर चर्चा, व्हाटएवर जो उसने इन्वेस्ट किया है उस पर वो चर्चा करेगा, आत्मचिंतन करेगा। जीवन में नए ज्ञान का प्रयोग करेगा, अप्लाइड न्यू नॉलेज, जो कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया है उसे वो अप्लाई करेगा। तो नए प्रश्न उत्पन्न होंगे, डिस्कशन करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, कैसे। नाउ वी विल गोइंग टू सी दैट। देखो अब ये गतिविधि देखो, सबसे पहले मैं आपके समक्ष गतिविधि रख रहा हूं। कक्षा 1 से 5 तक की बहनें यहाँ पर उपस्थित है, भाई और बहनें सब कक्षा 1 को 5 को पढ़ाने वाली सभी अध्यापिकाएं यहाँ पर है। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वाक्यों में से सब्जी के नाम खोजिए। अब देखो मैंने जिज्ञासा जगानी है मुझे छात्रों में। आमतौर पर हम छात्रों को सब्जी के नाम बताते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, व्हाटएवर, मटर, आलू, बैंगन, ऐसे बताते हैं। ये तो डायरेक्ट हो गया। हम नवाचार की दृष्टि से देखेंगे, थिंकिंग स्किल को डेवलप करेंगे। और जब हम थिंकिंग स्किल को डेवलप करेंगे तब उनमें क्यूरियोसिटी का जन्म होगा, जब हम नए एंगल से सोचेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, आपको इसमें से सब्जी के नाम ढूंढने हैं। छात्र जिज्ञासा से इसे पढ़ेगा, छात्र इसे जिज्ञासा से पढ़ेगा। देखो अभी पढ़ेंगे, चलो अभी आपको मैं पहला वाक्य पढ़कर सुना रहा हूं। गोपू दीनानाथ का बेटा है, इसमें सब्जी का नाम आया है। देखिए जरा गौर से पढ़िए, और कौन सी सब्जी है उसे लिखिए चैट बॉक्स के माध्यम से। गोपू दीनानाथ का बेटा है। 6 to 8 वाले शिक्षक भी उत्तर दे सकते हैं, 9 10 वाले। सुनीता मैम बोल रही है गोभी। हाँ सर सुनीता मैम गोभी किधर है? इधर गोभी नहीं है। देखो गोपू दीनानाथ का बेटा है। देखिए जरा देखिए सभी, देखिए ज्वाइन करिए उस शब्दों को। सर पुदीना भी आंसर्स आ रहे हैं सर। पुदीना, पुदीना है, क्या है? पुदीना, पुदीना आया है। दूसरा, चलो दूसरा का बताइए मुझे, चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कृष्ण को गोपाल कहते हैं। हाँ पालक, पालक, पालक है। वेरी गुड, वेरी गुड। वृंदा मैम भी पालक। हाँ पालक। थर्ड वाला देखिए, राखी और सखी रात भर पढ़ाई कर रही थी। सर खीरा बोल रहे हैं सर। हाँ सुनीता मैम बोल रही है खीरा। खीरा, खीरा है। यस वेरी गुड, वेरी गुड जी।
आगे, दीपावली में फूलों से मंदिर सजाते हैं। यस, लिखिए, दीपावली में फूलों से मंदिर सजाते हैं। सर यस, रास सर सेम बोल रहे हैं। हाँ, कौन सी है? सेम। सेम है। लौकी भी बोली जा रही है सर। ये सेम है। 5 में बताइए, शनि ग्रह पर, शनि ग्रह पर अधिक है। शनि ग्रह पर वलय अधिक है। सॉरी, ये वाले की जगह पर वलय हो गए चाहिए। शनि ग्रह पर वलय अधिक है। सर एक आंसर आया शनि फूल ग्रह पर, गोभी। हाँ, फूल नहीं, गोभी मैंने और यहाँ पर वाले परवल। की जगह पर वलय बोला। वलय, वलय, वलय। शनि ग्रह पर वलय अधिक है। सर आंसर्स आ रहे हैं परवल। परवल, परवल आएगा। वेरी गुड। कलह सुनकर बुरा लगता है। यस, लहसुन सर, यस, आइए लहसुन। चैट बॉक्स के माध्यम से। जी सर आंसर बराबर आ रहे हैं सर, लहसुन बोल रहे हैं सर। आ रहे आंसर आ रहे हैं। किसी ने लिखा है लहसुन, जी लहसुन। सर, यस, रूपाली लहसुन मैम, है। उमा ये मैम। देखिए, यस, यस, वेरी गुड। किसने लिखा है? वो किसने लिखा है? रूपाली मैम ने लिखा था और उमा हाँ, मैम, रूपाली मालती मैम, मैम, धन्यवाद जी रूपाली मैम, आपका स्वागत है। लहसुन है। आगे, मधु मैम। जंगल सिमट रहे हैं। यस, हाँ जी। मटर सर, दीपिका मैम बोल रही है मटर। मटर क्या है? मटर, मटर पनीर खाते हैं ना आप सभी। देखो, तो इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? कुछ नया है? हम ट्रेडिशनल वे से पढ़ा रहे हैं क्या? इस प्रकार की गतिविधि आप जब कक्षा में कराओगे तो क्या ये ट्रेडिशनल पद्धति है? क्या ट्रांसफॉर्मेशनल है? कैसी है? यस, बताइए। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सभी की। आइए, सर बहुत। चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बहुत जी सर रुचिकर बोल रहे हैं गतिविधि बहुत है। रुचिकर गतिविधि थी सर। हाँ, और सीमा जी लिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ये क्या है? बिल्कुल नहीं। तो ये नवाचार है। ये क्या है? ना। नवाचार है। क्या इसमें जिज्ञासा है? क्या इसमें जिज्ञासा है? यस और नो? जिज्ञासा है? Yes. जिज्ञासा यस है। सर, तो यस क्या सर, इसमें कमेंट आ रहा है ये यस। जिज्ञासा सोच के साथ कनेक्टेड है? जिज्ञासा सोच के साथ कनेक्टेड है? हाँ जी सर। जी। तो यही पहली स्टेप है, यही पहला चरण है अन्वेषण आधारित शिक्षा का, कि जिज्ञासा जगाना, प्रश्न उत्पन्न करना, पढ़ने की ओर छात्र को आकर्षित करना। देखो, उसी प्रकार की मैंने, और अब ऐसी कई प्रकार की गतिविधियां आप बना सकते हैं। अभी देखो, पशु पक्षी उनके नाम खोजिए। बताइए। चाचू हाथ धोकर खाना खा लीजिए। विशेषकर मेरी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो बहनें हैं, चाचू चूहा हाथ सर। धोकर खाना खा लीजिए। यस। सर बहुत सारे कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। आया है हाँ, चूहा सर, चूहा चूहा। चूहा, चूहा, ये चूहा आया। ये दूसरे में, मैं मैं नानी नानी के के घर घर जा रहा जा हूँ। रहा हूँ। हाँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, इसमें आया है मैना सर, मैना। महीना, वो अनुस्वार हम निकाल देंगे तो महीना हो गया। ओके। थर्ड में, राम और महतो ताला लेकर आए। सर तोता बोल रहे हैं, तोता। तोता, तोता लिख रही है, बहनें लिख रही है। जी सर बहुत। विजय धागा यहां से निकालो। गाय विजय सर, धागा, कमेंट आ रहा है हाँ, गाय गाय गाय। गाय, गाय, वेरी गुड, गायो। यस। अब करीब कभी शहर नहीं जाएगा। बकरी यस, सर, बकरी। बकरी कर। अच्छा, अच्छा, आप सभी का योगदान अच्छा है, सराहनीय है। आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बाबा जहाज पर बैठे हैं। बाज सर, बाज। किसने लिखा है? बहुत खूब, लिखा बहुत है खूब। लीना। यस, आपकी सोच सकारात्मक है। लीना यस, मैम, दीपिका मैम, विनीता मैम। सर बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और बहुत तेज रफ्तार से आ रहे हैं सर। ये रहा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जी। सभी सक्रिय है, सक्रिय है। अभी देखो साथ में, विभा, लू बहुत है, सो हम घूमने नहीं जाएंगे। विभा, लू बहुत है, सो हम घूमने नहीं जाएंगे। तो सर इसका देखिए, कमेंट आया भालू, भालू। भालू, यस, भालू है इधर। वेरी गुड।
कैसे लगी आपको ये गतिविधियां? देखो, हटके हैं, नवाचार है। सर बहुत अच्छी थी। देखिए आ मैं रहे फिर हैं से मेरी वो मैसेजेस। 2 लाइन दोहरा रहा हूं। जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, उनके कारण ही तो मानव बढ़ता प्रगति के पथ पे। तो छात्र का विकास होगा, छात्र का क्या होगा? विकास होगा। इस प्रकार की गतिविधियों का आप अनुसरण करेंगे, कक्षा में इसे अपनाएंगे, तो छात्र आगे बढ़ेगा। देखिए, अब देखो शब्दों से खेल है। देखो, जिज्ञासा जग रही है, टू डेवलप द क्यूरियोसिटी। कौन सा शब्द फ से शुरू होकर ल पर खत्म होता है और खुशबू देता है? कौन सा शब्द फ से शुरू होकर ल पर खत्म होता है और खुशबू देता है? सर आ रहे हैं कमेंट। फूल सर, फूल। तो ये फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो। वाह, क्या बात है! किसने लिखा है? कौन लिख रहे हैं? संगीता मैम ने ये लिखा है बहुत। और बहुत सारे कौन कमेंट्स लिख आए रही हैं है? सर। संगीता यस मैम ने यस दिया। यस। मीना मैम। यस यस यस, संगीता मैम आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आप ऊर्जावान, प्रतिभावान अध्यापिका है, आपका स्वागत है। देखिए, अब देखो चंद्र बिंदु की। हम चंद्र बिंदु पढ़ाते कक्षा में, हम बताते आंख, दांत ना, इस गांव, ट्रेडिशनल वे से पढ़ाते आ रहे। हम उस ट्रेडिशनल वे को छोड़ना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम सब हिंदी अध्यापक, बराबर है, हम सब हिंदी अध्यापक, भाषा विज्ञानी। देखिए, चंद्र बिंदु की पहली। देखिए, जीप के सिपाही। कौन है जीप के सिपाही? जीप के सिपाही, यस, बताइए। दांत सर, मैसेज आ रहे हैं दांत। हाँ यस, अलग वे से पढ़ाई, हट के पढ़ाई बच्चों को। एक खट्टा फल हम खाते हैं, छोटा सा होता है, एक खट्टा फल। नींबू सर, नींबू। हाँ, नींबू। नो, नींबू नहीं। खट्टा फल एक छोटा सा होता है। अंगूर कमेंट आ रहा है सर, अंगूर। नहीं, अंगूर तो खट्टा नहीं होता है। सर आंवला होगा आ क्या? से होता है, आंवला, आ आंवला। आंवला। यस, सही फरमाया आपने। जी। एक फसल का नाम, एक फसल का नाम। आप सभी की प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। एक फसल का नाम। गेहूं सर, गेहूं। गेहूं, यस, गेहूं। कमेंट में आ रहे शहर हैं का गेहूं। विलोम, शहर का विलोम, चावल। शहर का विलोम क्या है? गांव सर, कमेंट में गांव, भी आया गांव। है गांव। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज उबड़ खाबड़ होता है, उबड़ खाबड़। ऊंट सर, कमेंट में आ रहे हैं ऊंट। ऊंट। रात में आसमां में निकलता है। चांद, कमेंट में चांद आ चांद, रहा है। आधा है जी सर। चंद्रमा, रात आधी। वाह, क्या बात है! जी सर। कौवा बोले, कौवा बोले, काव, काव। कौवा बोले काव काव। कली का बहुवचन, कली का बहुवचन। कलियां सर, कमेंट में आया कलिया। कलियां। देखो, तो कैसे लगी ये गतिविधियां? देखो, सोच नई है, अंदाज नया है, तरीका नया है, जिज्ञासा जग रही है। छात्रों की सोच विचार को, छात्रों की चिंतनशीलता को, थिंकिंग पावर एनहांस हो रही है, आगे बढ़ रही है। यस सर, नो? यस। बिल्कुल बताइए, सही आप सर। सभी ऊर्जावान अध्यापक हैं। शिव यस, कुमार सर बोल रहे हैं बहुत सही। यस, बहुत स्वागत है जी, आपका स्वागत है जी। यस। हाँ, आगे बढ़ सकता हूं मैं? आप सभी की इजाजत है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? जी सर। अभी तो सिर्फ हमने देखा कि जिज्ञासा को कैसे उत्पन्न करना, किस प्रकार के प्रश्न बनाना, किस प्रकार की गतिविधि बनानी है। जिज्ञासा को क्रिएट करने के लिए छात्रों के मन मस्तिष्क पर जिज्ञासा का संस्कार हो, सोच चिंतनशीलता उनकी विकसित हो। इसलिए किस प्रकार की गतिविधियां हम कक्षा 1 से 5 तक अपना सकते हैं, उनके बारे में हमने जाना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, इसके बेनिफिट्स पढ़िए बहन, क्या लिखा है? जी सर। यस,
जी सर, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा है समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि, आलोचनात्मक व रचनात्मक सोच का विकास, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिंग लर्निंग, और लास्ट है सर सीखना अधिक टिकाऊ और अर्थपूर्ण। देखो, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। हर एक छात्र इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेगा, जिज्ञासा जगेगी, समस्या का समाधान करने के लिए वो कार्य करेगा, तत्पर होगा। आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस पे वो सोचेगा, थिंकिंग पावर उसकी विकसित होगी। सहयोगात्मक अधिगम, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेगा, टीम वर्क ना, समूह गतिविधि, ग्रुप वर्क, ग्रुप एक्टिविटी। सीखना अधिक टिकाऊ हो जाएगा, चिरकाल तक वो उसे ध्यान में रहेगा। अब हम इसे हिंदी में समन्वित करेंगे। किस प्रकार इसका हम उपयोग करेंगे? किसी कविता या कहानी से संबंधित प्रश्न बनाएंगे, जिज्ञासा पर आधारित। हाउ दैट वी विल गोइंग टू सी। भाषा के प्रयोग पर चर्चा करना, वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरणों पर विचार विमर्श करना, जो रियल लाइफ, विद्यार्थियों से नए दृष्टिकोण व विचार प्रस्तुत करवाना, उनको रिफ्लेक्ट डिस्कशन करने के लिए मोटिवेट करना, आमंत्रित करना। तो आईबीएल जो है, माय डियर टीचर, आईबीएल विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न तैयार करने और खोजने के लिए प्रवृत्त करता है। ये केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन कौशल के विकास में भी सहायक है। लाइफ स्किल छात्रों में बहुआयामी व्यक्तित्व को निर्माण करता है। देखिए, अब हम देख रहे हैं प्रश्न पूछना। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो देखो, ऐसे प्रश्न पूछो कि छात्रों के मन में जिज्ञासा जगनी चाहिए। क्या जगनी चाहिए? जिज्ञासा का निर्माण। जब उसके मन में जिज्ञासा जगेगी, तब वो समस्या का हल निकालने के लिए बहुत तेरी कोशिश करेगा, वो प्रयास करेगा। क्यों, क्या, कैसे सोचने की शुरुआत होगी। जांच का आधार, वो जो निष्कर्ष निकालेगा उसे रिवैल्यूएट करेगा, उसका पुनर्मूल्यांकन करेगा कि ये सही है क्या सही, गलत है क्या गलत। इस पर इस और हो जाएगा, इस चरण की ओर वो बढ़ेगा। और जब छात्र प्रश्न पूछता है, तब जिज्ञासा छात्रों के मन में जगती है। एम आई राइट? हाँ, ट्रू सर, बिल्कुल सर। जिज्ञासा जगेगी तो छात्र में क्या होगा? तो छात्र जो है, ये जिज्ञासा ही विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। बिना प्रश्न के खोज और जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। करेक्ट है? करेक्ट है जी सर, कमेंट में भी आ रहे हैं। शिव कुमार सर बहुत अरे, एक्टिव हैं सर, सारे रिप्लाई जी क्या कह रहे हैं? सभी शिक्षक क्या कह रहे हैं? जी सभी कह रहे हैं। ऊर्जावान, प्रतिभावान, प्रज्ञावान शिक्षक है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं जी मैम? जी सर, वही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं आप, और जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं आप। Yes. सहयोग कर रहे हैं सर जी। यस। तो देखो, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, अनुमान, पूर्व ज्ञान, संभावित उत्तर, कल्पना, सोच की दिशा बढ़ेगी, खोज की ओर वो बढ़ेगा। छात्र खोज की ओर बढ़ेगा। अन्वेषण देखो क्या होगा। हाइपोथेसिस जो है, परिकल्पना, खोज की प्रेरणा मिलेगी छात्र को, खोज करने की प्रेरणा मिलेगी कि जब जब बच्चे किसी विषय को लेकर जिज्ञासु हो जाते हैं, तो वे स्वयं सूत्र, उदाहरण और अनुभव और अनुमान लगाते हैं। यही इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का सार है। फिर वो अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, प्रयोग करेगा, अवलोकन करेगा। जो कुछ निष्कर्ष निकाला है, जो कुछ उसने खोज की है, सही है या गलत, उसके बारे में सोचेगा, डेटा संग्रह करेगा, इंटरनेट से, पुस्तकालय की सहायता लेगा, और फिर वो अपने प्रमाण की पुष्टि करेगा। तब छात्र के मन में नया ज्ञान निर्मित होगा, न्यू नॉलेज। जब छात्र के मन में नया ज्ञान क्रिएट होगा, तब वो निष्कर्ष की ओर बढ़ेगा, तर्क सोचेगा, अनुमान निकालेगा, जानकारी का मेल, जो जानकारी मिली है सही है या गलत है,
सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, क्या गलत है। वो अपनी खोज से सीखेगा और अपनी समझ को विकसित करेगा। सही है। जी सर। फिर वो खोज पर चर्चा करेगा, अरे मैंने इसकी खोज की, सो एंड सो निकाला। अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ वो वार्तालाप करेगा। आत्मचिंतन भी करेगा, इंट्रोस्पेक्शन, विचार विमर्श, प्रतिक्रिया, आलोचनात्मक सोच, साझेदारी, आत्मविश्लेषण करेगा। तो देखो, फिर वो जो नया ज्ञान उसने सीखा है उसे वो डेवलप करेगा और उसे वो अप्लाई करेगा बाहरी दुनिया के साथ, वास्तविक जीवन के साथ उसे अप्लाई करने की कोशिश करेगा। जब वो अपने नए ज्ञान को बाहरी दुनिया के साथ अप्लाई करेगा, समन्वित करेगा, उसका उपयोजन करेगा, तब वो नवाचार की ओर बढ़ेगा। एम आई राइट? सही है। वो ट्रू सर। क्रियाशील होगा। अब इसे हम उदाहरण के साथ देखेंगे। विद द एग्जाम्पल वी विल सी ऑल दिस थिंग्स, देन इट विल बी मोर क्लियर। हम अलग अलग उदाहरणों के जरिए ये सारे चरणों को देखेंगे तो यह और क्लियर हो जाएगा। देखो, नए प्रश्न उत्पन्न करना, जिज्ञासा ही जो है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। बिना प्रश्न के खोज और जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। जिज्ञासा होगी तो गहराई से सोचेगा, आगे बढ़ेगा। बराबर है? सही बात है? सही बात है। हाँ जी। जी सर, अब कमेंट आ रहे देखिए हैं। क्या कमेंट आया बहन जी, जरा जी देखिए। सर, एग्री है। जी सर, सब पुष्पा मैम बोल रही हैं जी सर, और बाकी लोग भी आपके साथ ही एग्री हैं सर, एक्सेप्ट कर यस रहे हैं। यस, आप उत्साही है पुष्पा जी, आप उत्साही है, ऊर्जावान, बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका। आप इस आभासी मंच पर पधारी, आपका स्वागत है। अब देखो, कक्षा 1 से 5 की जो मेरी बहनें यहाँ पर है, कक्षा 1 से 5 तक की जो मेरी बहनें हैं, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ। अभी आप मुझसे वो रूबरू करेगी, चैट बॉक्स में आएगी। आप छात्रों को अक्षर और मात्रा का ज्ञान किस प्रकार कराते हैं, लिखिए जरा कमेंट्स में, 1-2 कमेंट्स लिखिए, किस प्रकार कराती है आप। कोई तो लिखिए, अक्षर ज्ञान और मात्रा ज्ञान आप किस प्रकार देते हैं। जरूरी नहीं कि 1 से 5 की अध्यापिका ही सर लिखेगी, ग्रेड जी 6 to सर, 10 वाले भी। हाँ सर बोल रहे हैं, लीना मैम बोल रही हैं पहले उच्चारण करवाकर फिर लिखकर, हाँ और मीना मैम बोल रही हैं चित्रों द्वारा। हाँ, जी सर, अभी तक 2 ही कमेंट आए हैं। हाँ। बहुत जी खूब, बहुत खूब। आपके सारे जो वार्तालाप है, संदेश है, उत्साह जी जगा रहे सर। हैं, लिखकर, राइम से। हाँ जी जी, सर। हाँ जी। देखो, मैंने देखो, मैं फिर से वो 2 लाइन दोहरा रहा हूँ। आगे की गतिविधि बताने से पहले मैं फिर से मेरी 2 लाइन दोहरा रहा हूँ। जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, जो दुनिया को नए भाव से देखते और परखते, उनके कारण ही तो मानव बढ़ता प्रगति के पथ पे। ऐसे सभी शिक्षक आप हैं। हटके मैंने प्रयोग किया है, जरा देखिए, उसमें नवाचार है, उसमें जिज्ञासा है, उसमें सोच है। देखिए वो गतिविधि। आओ करें अक्षर मात्रा और शब्दों का अभ्यास। आओ करें अक्षर मात्रा और शब्दों का अभ्यास। देखो, कॉलम 1 में क्या है, क्या है बताइए, किसकी मात्रा है बहन जी, पूजा जी। जी सर। जी सर। हाँ, कॉलम 1 में किसकी मात्रा है? सर आ की मात्रा कमेंट में आ आ की रहा है, मात्रा आ। है। कॉलम 2 में क्या है? सर अभी तो कुछ नहीं आया है। 2 में न है, न। ना। कॉलम यस 3 सर, में, ना लेटर कमेंट में आया हाँ, है सर। कॉलम 3 में कॉलम 3 में अक्षर दिखा रहे हैं सर। मिस शिव कुमार सर बोल रहे हैं, मिस्टर शिव कुमार, बड़ी की अक्षर। मात्रा है, ई बड़ी ई की की मात्रा है। मात्रा। जी सर। जी सर। हाँ, और कॉलम 4 में क्या लिखा है? र दिखा रहे हैं सर। र, सुनीता र मैम बोल लिखा रही है। है र। कॉलम 5 में केवल अक्षर सर। क है, क लिखा हाँ है, दिखाई हाँ दे सर, रहा है? अभी कमेंट आया, दीपिका मैम ने बोला का। क है। और कॉलम 6 में क्या है? विनीता मैम बोल रही है माँ सर, माँ। म है। देखो, देखो मैंने नीचे क्या किया है। अब मुझे अक्षर मात्रा और शब्दों का अभ्यास करवाना है। देखो, मैंने इधर 4 लिखा,
4+1+6। फिर 4 पर क्या है, र है, ये र मैंने इधर लिखा। फिर 1 पे क्या है, आ की मात्रा है, वो मैंने लिखी। फिर 6 पर म है, वो म मैंने लिखा। तो र प्लस आ की मात्रा प्लस म, राम। क्या हो गया, राम। क्या आप देख सकते हैं सभी, आप सभी देख सकते हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, Yes, sir, we can hear. You can go ahead. yeah, you can hear ना, but no one is talking, that's you can, I can hear ना, you can audible ना। तो देखो 4+1+6, र प्लस आ की मात्रा प्लस म, राम। तो देखो अक्षर मात्रा का अभ्यास करवाया गया नवाचार से। इसके लिए एक्सरसाइज है सभी के लिए। कॉलम 1 में 5 जोड़ 1 जोड़ 2, कौन सा शब्द तैयार हो जाएगा? चलिए अक्षर और मात्रा को मिलाइए, छात्र बनिए, बताइए मुझे। यस, हाँ जी, यस यस, लिख रहे हो, लिख रहे हो, उत्तर आ रहा है, वेरी गुड, उत्तर आ रहा है। कार, कान, काम, नमकीन, वेरी गुड, उत्तर आ रहा है। आगे बढ़िए। यस, यस, बताइए। 7 तक, 9 तक है, देखिए 9 तक है, नमकीन तक आया उत्तर। यस, लिखिए लिखिए, अमिता जी लिखिए, अमिता जी लिखिए। अमिता जी, हम आपसे रूबरू हो गए, मौखिक रूबरू हो गए सेशन के बाद। अभी आप लिखिए। यस, मकान, मान, यस। तो ये सारी गतिविधियां आपको कैसे लगी? तो देखो हमने अक्षर, मात्रा और शब्दों का अभ्यास किया, नए वे से, न्यू एंगल से देखा। तो छात्र जब करेगा ना, तो देखो 5 जोड़ 1 जोड़ 2, तो 5 पर वो बोलेगा क, फिर 1 पर बोलेगा आ की मात्रा का, फिर 2 पर बोलेगा चार, कार। क्या बोलेगा? कार। बराबर है। उस प्रकार मकान, नमकीन, कार, ये सारे शब्द आएंगे। हाँ जी, सही लगा आपको? कैसे लगी? ठीक है, Yes, sir. Good, sir. Good, sir. नए Yeah. भाव से हैं। आगे Super, बढ़े sir. अभी हम। बहुत बेहतरीन सर, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सभी के। मान, रन, सुपर सुपर सर, वेरी गुड वेरी गुड। यस, बहुत खूब, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया है। सब्जेक्ट इंट्रीगेशन है, वेरी गुड। पुष्पा जी लिख रही है सब्जेक्ट इंट्रीगेशन, बहुत खूब, आपका स्वागत है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नई आइडिया है, तो ये नई आइडिया, यही नवाचार है। तो इसमें जिज्ञासा है, देखो क्यूरियोसिटी है। हाउ टू डेवलप द क्यूरियोसिटी एंड थिंकिंग पावर इन द किड्स, स्पेशली ग्रेड 1 to 5। देखो, तो इस प्रकार से आप अक्षर, मात्रा, अलग अलग शब्द लीजिए और छात्रों से अक्षर, मात्रा और शब्दों का अभ्यास करवाइए। एआई, आगे बढ़ते हैं केस स्टडी की ओर। देखो अभी केस स्टडी क्या है, सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। क्लास में हम पढ़ाते हैं, अध्यापन अध्ययन प्रणाली में कई सारे हमारे सामने तर्क वितर्क आते हैं, तो हम कैसे उसे टैकल करते हैं। संकल्पना आती है, संकल्पना को हम कैसे, उसका विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं केस स्टडी प्रश्न की ओर। स्थिति दी है मैंने यहाँ पर, आप किसी एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। देखो आप छात्र हैं, अज्यूम दैट आप किसी एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। शिक्षक ने आपको अखबार का एक पन्ना दिया, न्यूज़पेपर आपके सामने रखा, जिसमें एक ही शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल हुआ है। देखो
एक ही शब्द बार बार आया है। अखबार का पन्ना दिया, उसमें एक ही शब्द जो है बार बार आया है, अगेन एंड अगेन, लेकिन वो शब्द बार बार आया है। बट माय डियर टीचर, उस शब्द का अर्थ बार बार कुछ अलग है, एक ही अर्थ से नहीं आया है, अलग अलग अर्थ से आया है। जैसे हम बोलते हैं माया, माया यानी धन, और माया किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो देखिए, देखिए, उसकी नजर बहुत तेज है, वह दूर की चीज साफ देख लेता है। माँ की नजर अपने बच्चों पर हमेशा रहती है। पुराने मकान पर किसी की नजर लग गई है। राजा ने सैनिकों को इनाम में सोने की नजर दी। कविता लिखते समय कवि की नजर जीवन की सच्चाइयों पर थी। देखो, नजर 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 5 बार आया है। अब देखो, पांचों बार इस शब्द का अर्थ अलग है। उसकी नजर बहुत तेज है, वह दूर की चीज साफ देख लेता है। क्या अर्थ है इस नजर का? कोई लिख सकता है? चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आप मुझे, क्या अर्थ है इसका? जी हाँ, दृष्टि, बराबर लिखा। कौन लिख रही है? शशिकला बहन जी लिख रही है। आपका स्वागत है शशिकला जी, आपका स्वागत है। कि इसका अर्थ है दृष्टि की नजर में आई है। दूसरा देखो, माँ की नजर अपने बच्चों पर हमेशा रहती है। यहाँ पर क्या अर्थ है? देखो, माँ की नजर अपने बच्चों पर हमेशा रहती है। यस, केयर, केयर करना। यस, माँ की, आपने किसी ने लिखा है आप, यस, केयर करना, वेरी गुड। आगे देखिए, पुराने मकान पर किसी की नजर लग गई है। अब ये नजर का अर्थ क्या है? पुराने मकान पर किसी की नजर लग गई है। यस, हाँ जी, किसी की आंख लग गई है। यस, बुरी नजर। ओके, राजा ने सैनिकों को इनाम में सोने की नजर दी। क्या अर्थ है इस नजर का? सोने की नजर दी राजा ने, सोने की नजर दी। राजा ने सैनिकों को इनाम में सोने की नजर दी। सोने की नजर, देखो, मैं संदर्भ दे रहा हूं। क्या आएगा इस नजर का अर्थ? क्या आएगा? लिखिए, भेंट। किसी ने लिखा है भेंट। कौन लिख रही है? दीपिका बहन लिख रही है। दीपिका पुरोहित जी, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर उपस्थित है। बहुत खूब, बहुत खूब। कविता लिखते समय कवि की नजर जीवन की सच्चाइयों पर थी। देखो, कवि की नजर किस एंगल में आया है? कवि की नजर, यस, नजर, कवि की नजर। राज जी ने लिखा है, राज रानी जी लिख रही है दृष्टिकोण। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, तो इस प्रकार अलग अलग एक ही शब्द के जो अलग अलग अर्थ होते हैं, ये समझाने से पहले हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल वे से नजर शब्द लिखते हैं और उसके अलग अलग अर्थ आते हैं, हम उधर लिखते हैं दृष्टि, भेद, दृष्टिकोण ना, बुरी नजर लगना, इस प्रकार हम अर्थ लिखते हैं। तो ये गलत है, ये ट्रेडिशनल है। हमें ट्रांसफॉर्मेटिव होना है, हमें जिज्ञासा छात्रों में निर्माण करनी है। तो इस प्रकार के वाक्य आपको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। छात्रों की जिज्ञासा को जगाना है, उनकी चिंतनशीलता का विकास करना है। तो देखो, इससे छात्रों में क्या विकसित होगा? जिज्ञासा। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ कैसे, देखो, कैसे निर्माण होते हैं, ये छात्र जानेगा। अन्वेषण कौशल होगा, शब्दकोश, डिक्शनरी, किताबें में ढूंढेगा, किताबों में वो ढूंढेगा, इंटरनेट का प्रयोग करेगा। विश्लेषण, अलग अलग संदर्भों का अध्ययन करेगा कि एक ही शब्द लेकिन अलग एंगल से आया है। चर्चा और तर्क करेगा, अपने समूह में वार्तालाप, विचार विमर्श करेगा, ज्ञान का प्रयोग करेगा। बराबर है? तो आप सभी को ये एक्टिविटी कैसे लगी, ये नवाचार आपको कैसे लगा, जो जिज्ञासा और सोच प्रणाली पर आधारित है? जरा आइए, कृपया चैट बॉक्स में आइए। मौखिक तौर पर बोलने का सबको अवसर दिया जाएगा जैसे सेशन खत्म होगा। ये
चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। यस, बहुत सुंदर। यस, सुंदर गतिविधि है। पूजा जी यहाँ पर है, पूजा जी पढ़िए जरा। तकनीकी समस्या है लगता है पूजा जी के यहाँ पर। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। देखो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। यस, यस, यस। पूजा जी के यहाँ से तकनीकी समस्या है। क्या ऑडियंस में से कोई पढ़ सकता है सर? किसी एक को रिप्रेजेंट किया जाए ऑडियंस में से, यदि सर की इजाजत है। यदि सर की इजाजत है तो ऑडियंस में से कोई। हाँ जी, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर वाक्य देखो, जैसा कि आपने बताया, दृष्टि, उसकी नजर बहुत तेज है। दृष्टि, माँ की नजर, ध्यान, देखभाल। पुराने मकान पर किसी की नजर लग गई है, बुरी नजर, अंधविश्वास। राजा ने सैनिकों को इनाम में सोने की नजर दी, भेंट, उपहार दिया। कविता लिखते समय कवि की नजर जीवन की सच्चाइयों पर थी। दृष्टिकोण सोच से संबंधित है। यस, हाँ जी, हम आगे बढ़े। देखो, देखो, आप सभी उत्साही हैं, ऊर्जावान हैं, दिमाग लगाओ और शब्द बनाने हैं आपको। देखो, मैंने एक दिया है, किताब। किताब पढ़ना। उसी प्रकार गेहूं, गेहूं का क्या आएगा? लिखिए, चैट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहता हूं। देखो, छात्रों में आप वोकैबुलरी क्रिएट कर रहे हैं, शब्द भंडार जो है छात्रों का, उसे विकसित कर रहे हैं। कैसे? जिज्ञासा के जरिए। और बच्चा सोचेगा, किताब क्या पढ़ना, तो गेहूं का क्या होगा? सोचेगा। गेहूं का क्या होगा? छात्र सोचेगा। तो गेहूं का क्या आएगा? ये जी, जी, यस, यस। देखो, गेहूं पिसवाना या गेहूं, गेहूं काटना। बकरी का क्या आएगा? बकरी। यस, कोई लिख रहा है बकरी का? बकरी पालना या बकरी को चराना, वेरी गुड। संगीता जी लिख रही है। बर्तन का? बर्तन धोना या मांजना। पकौड़ी, पकौड़ी का क्या आएगा? पकौड़ा या पकौड़ी। तलना, पकौड़ी को तलना या पकौड़ी को खाना, गर्मा गर्म पकौड़िया खाना। नाखून, क्या लिखा है? काटना, वेरी गुड। क्रिकेट खेलना, वेरी गुड। मोमबत्ती जलाना, वेरी गुड। पतंग उड़ाना, वेरी गुड। फूल तोड़ना, सूंघना, वेरी गुड। मोबाइल चलाना, कपड़ा धोना, चाय पीना, वेरी गुड। मेला, मेले में क्या? मेला घूमना। रस्सी, रस्सी कूदना। और आग, आग लगाना या आग जलाना? आग जलाना लिखेंगे। आग लगाने का भी काम करते हैं कई लोग, तो आग लगाना भी होगा या आग जलाना भी होगा। हाँ जी, लेकिन हम सकारात्मक जाएंगे, आग जलाना। कैसे लगी ये एक्टिविटी आपको? नवाचार है। देखो, दिमाग पर प्रेशर हुआ है, सोचने की क्रिया हो गई है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, छात्र अन्वेषण आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो, आप कक्षा में दोहा पढ़ाते हैं, अध्यापन करते हैं, दोहा पढ़ाते हैं। देखो, अब हम हायर स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कक्षा 1 से 5 से संबंधित गतिविधियां फिर से आएगी। किसी को जाना नहीं है, और गतिविधियां आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कक्षा 6 से 10 तक दोहा हम सीखते हैं, पढ़ाते हैं ना, आप दोहा पढ़ाते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? पूजा बहन आप पढ़ सकती है? पूजा बहन नहीं ना, तो ऑडियंस में से कोई पढ़ सकता है? ऑडियंस में से कोई ले ले। नहीं ना, ओके, ओके। तो देखिए,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब देखो, हम सारी स्टेप को, सारे चरणों को फॉलो करेंगे। अभी देखो, वहां जो चरण है, 6 और 7 चरण है, कैसे पढ़ाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब देखो, अब आप इसे पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, अब इसे कैसे पढ़ाएंगे, जिज्ञासा क्रिएट करनी है छात्रों में हमें। तो देखो, नवाचार पूर्ण चरण, प्रश्न पूछना। आप प्रश्न रखेंगे छात्रों के समक्ष कि अगर हमारे स्कूल का कोई मित्र हमेशा ऊंची बातें करता है पर मदद नहीं करता, तो क्या वो बड़ा कहलाएगा। प्रश्न आपने छात्रों के समक्ष रखा, ये दोहा आपको पढ़ाना है। फिर आपने रखा कि क्या बड़ा होना और महान होना अलग है। देखो स्टेप्स, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से पढ़ाइए दोहा, आज से लेकर रहीम के दोहे हो, कबीर के दोहे हो, आप इंक्वायरी बेस से पढ़ाइए। कक्षा में अलग अलग गट कीजिए, दल बनाइए, 7 दल, 7 चरण है इसके, 7 दल बनाइए। भले 2-2 बच्चे हो, उसमें 3-3 हो, जितनी स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से दल बनाइए। आप प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न आप छात्रों के समक्ष रखेंगे। देखो, क्या बड़ा होना और महान होना अलग है। छात्र सोचेगा कि सचमुच क्या बड़ा होना और महान होना अलग है, क्या एक है। महान होना और बड़ा होना, इसमें अंतर है। छात्र सोचेगा, परिकल्पना करेगा, हाइपोथेसिस, अनुभव से जोड़ेगा। कबीर ये कहना चाहते हो, ये कहना चाहते हैं कि बिना काम आए ऊंचाई का कोई महत्व नहीं। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसके पास देखो समुंदर, समुंदर के पास कई सारा पानी है, लेकिन वो पानी हम नहीं पी सकते। समुंदर बड़ा है, महान नहीं। एक एंगल से, एक दृष्टि से हम सोचे तो। हालांकि क्योंकि समुद्र हमें बहुत कुछ देता है, वो अलग बात है, लेकिन वो पानी मीठा जल नहीं देता। शायद सच्ची बड़ाई केवल सेवा और दया में है। सच्ची बड़ाई किसमें है, सेवा और दया में है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मदर टेरेसा जी। विद्यार्थी सर खुद अभी मैं लिखेंगे। ऑडिबल हूँ? अच्छा, अभी आप ऑडिबल है, जी जी जी। जी, अगर आप कहें तो धन्यवाद मैं जी। पढूं? हाँ, ये अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं बता रहा हूँ। ओके जी। जी। मेरे हिसाब से बड़ा होना, बड़ा इंसान वो है जो सेवा और दया को अपनाता है, सेवा और दया को अपनाता है। छात्र हाइपोथेसिस, परिकल्पना करेगा, सोचेगा, बराबर है, अपना एक संभावित कथन बनेगा। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है, वो संभावित कथन बनाएगा, हाइपोथेसिस, कि उसके बारे में सोचेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहन जी पढ़ेगी। पूजा जी जी सर। पढ़िए। जी। अन्वेषण करना गतिविधि के रूप में, समूह कार्य, किताबों, इंटरनेट से अन्य कबीर दोहे या महान व्यक्तियों के जीवन उदाहरण खोजें। रोल प्ले, एक विद्यार्थी खजूर का पेड़ बने, दूसरा आम का पेड़ बने और बाकी विद्यार्थी उनके गुण अवगुण बताएं। देखो, फिर अन्वेषण आएगा, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, वो किताबें और पुस्तकालय, इंटरनेट का सहारा लेंगे और महान व्यक्तियों के उदाहरण ढूंढेंगे छात्र। या रोल प्ले करेंगे, कोई छात्र खजूर का पेड़ बनेगा, दूसरा आम का पेड़ बनेगा, बाकी विद्यार्थी उनके गुण अवगुण बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर नया ज्ञान निर्मित होगा। नया ज्ञान जो निर्मित होगा, जैसे सच्ची महानता के सूत्र, छात्र पोस्टर बनाएगा। सेवा, सहयोग, नम्रता, उपयोगिता, इन शब्दों को वो इन शब्दों का प्रयोग करेगा और वो पोस्टर बनाएगा। सच्ची महानता क्या है, जैसे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उस भांति वो अपने नए ज्ञान को निर्मित करेगा। चर्चा करेगा, आत्मचिंतन, क्या मैं खजूर के पेड़ जैसा हूं या आम के पेड़ जैसा, क्या मैं बड़ा हूं, क्या मैं महान हूं, क्या मेरी पढ़ाई केवल अंकों में है, क्लास में प्रथम आता हूं लेकिन मेरे पास कोई अच्छे गुण ही नहीं है।
तो कक्षा में प्रथम आने का क्या फायदा? या मैं दूसरों की मदद करता हूं, विद्यार्थी प्रिय हूं, सहपाठी प्रिय हूं, सभी में मैं प्रिय हूं, आत्मचिंतन करेगा और वो नए ज्ञान का प्रयोग करेगा। कैसे? डायरी लेखन करेगा, ईमेल लिखेगा, संवाद लिखेगा, पैराग्राफ अनुच्छेद लेखन करेगा, पत्र लिखेगा। देखो, 1 सप्ताह तक प्रतिदिन किसी न किसी की मदद करने के अनुभवों पर आधारित डायरी लेखन करिए। तो दोहा पढ़ाते समय आप आगे बढ़ सकते हैं कि रचनात्मक विधा का सहारा ले सकते हैं कि बच्चा ईमेल लिखेगा कि उसने किसकी सहायता की, अनुच्छेद लिखेगा, तो ये प्रयोगात्मक कार्य होगा। तो इस भांति आप आगे बढ़ सकते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये अनुच्छेद भी पढ़ा सकते हैं इस दोहे के साथ। एक पंथ दो काज, बराबर है, कहते ना। अब देखो कैसे लगी आपको ये गतिविधि, जरा बताइए, चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। कमेंट्स आ रहे हैं सभी के। यस, सोच और बड़ी होगी। यस, बहुत कुछ, आप सभी प्रेरित है, आप सभी का स्वागत है जी। देखो उसी भांति, देखो उपसर्ग और प्रत्यय उसी भांति है, स्टेप्स वही है, लेकिन ये व्याकरण है कि विद्यालय की हिंदी पत्रिका आप बना रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय, और उस पत्रिका का आप नाम रखना चाहते हैं। देखो, हिंदी पत्रिका समिति, उसके लिए पत्रिका का नाम रखना है। पत्रिका का नाम ऐसा हो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का रचनात्मक प्रयोग। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय भी छात्रों को सिखाएंगे इस गतिविधि से। कैसे? तो देखो, प्रश्न करना, परिस्थिति प्रस्तुत कर छात्रों से आपको प्रश्न पूछने हैं कि पत्रिका का नाम किन गुणों वाला हो, क्या विशेषता हो, उपसर्ग जोड़े या प्रत्यय जोड़े। छात्र सोच की ओर प्रवृत्त होगा। आपको पहले उनको पढ़ाया है उपसर्ग और प्रत्यय। छात्र उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ एकत्रित करेगा, कौन सा नाम सही होगा। फिर वो हाइपोथेसिस बनाएगा, अगर हम सुपसर्ग जोड़ेंगे तो नाम श्रेष्ठ होगा, अगर हम मई प्रत्यय लगाएंगे तो नाम और सुंदर लगेगा। हाइपोथेसिस, संभावित कथन, छात्र सोचेगा। फिर वो अन्वेषण करेगा कि खेर शब्द मिलाओ, उपसर्ग कार्ड उसके सामने आप देंगे, प्र, अनु, अति, सु, ये उपसर्ग है। प्रत्यय देंगे, माला, मई, वृत्ति, कारी, ज्योति, लाइक दिस प्रत्यय उनके सामने रखेंगे, और एक सटीक शब्द, एक नया शब्द वो खोज निकालेगा पत्रिका के नाम के लिए। इससे वो सभी शब्दों को पढ़ेगा, उपसर्गों को पढ़ेगा, प्रत्यय को पढ़ेगा, तो उसकी रिवीजन हो जाएगी। सही है। अपने छात्रों, अन्य सहपाठियों के साथ वो वार्तालाप करेगा, नया ज्ञान गढ़ेगा। उपसर्ग शब्द के आरंभ में नया अर्थ जोड़ते हैं, बराबर है। प्रत्यय शब्द के अंत में नया रूप, पहचान देते हैं। निष्कर्ष निकालेगा, नया नाम वो चुनने लगेगा। चर्चा करेगा, आत्ममंथन करेगा, अपने बनाए नाम कक्षा में प्रस्तुत करेगा। अन्य छात्र प्रतिक्रिया देंगे, क्या ये नाम उपयुक्त है या नहीं। इससे पत्रिका की पहचान कैसे झलकती है उस पर सोच विचार होगा, चिंतनशीलता बढ़ेगी। कक्षा वोटिंग करके सर्वश्रेष्ठ 3 नाम आपको चुनने हैं। उपसर्ग पढ़ेगा छात्र, प्रत्यय पढ़ेगा, और 3 नाम आपको चुनने हैं। चुने गए नाम पर आप लोगो, पोस्टर बना सकते हैं। नाम के साथ एक टैगलाइन लिख सकते हैं। जैसे आपने उस पत्रिका का नाम रखा सुप्रज्ञा, और आगे लिखा रचनात्मकता की नई उड़ान, टैगलाइन जोड़ दिया, सुप्रज्ञा रचनात्मकता की नई उड़ान। तो सुप्रज्ञा में सु क्या है? उपसर्ग है। तो इससे छात्रों की जिज्ञासा क्या होगी? जगेगी, बढ़ेगी। छात्र जिज्ञासा की ओर बढ़ेगा, चिंतनशीलता विकसित होगी। ये सर चैट बॉक्स के माध्यम से आइए, मुझे बताइए जरा आप लोग। जी सर, बढ़ेगी। यस, निधि मैम ने यस, कमेंट किया है सर, मधु मैम ने यस, किया वेरी है, गुड हाँ जी, सर। वेरी गुड। तो अब आगे देखिए, तुकांत शब्द मैंने कैसे लिए। देखो, आप तुकांत शब्द देते हैं। देखो, मैंने तुकांत शब्द में पक्षी का नाम, चुलबुल, चुलबुल से पक्षी का नाम बताइए तुकांत। देखो, जिज्ञासा जग रही छात्रों की, सोच विचार प्रणाली की ओर बढ़ रहा है।
चुलबुल से पक्षी का नाम बताइए, तुकांत के साथ राइट करिए। यस, बुलबुल सर, बुलबुल, मैसेज आया बुलबुल आया बुलबुल। है। गुल्लू, गुल्लू, यस, उल्लू भी सर, उल्लू भी कमेंट में आया उल्लू है आया सर। है। औरैया, औरैया, गौरैया सर। गौरैया, कील, चील। चील, पारस, पारस कोई सारस, पक्षी का नाम है। हाँ सर, सारस। सारस, सिद्ध, सिद्ध से, यस, आइए चैट बॉक्स में आइए, सिद्ध से गिद्ध सर, गिद्ध। गिद्ध, 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 ताज, ताज, ईगल की एक प्रजाति, बाज, समाज सर, समाज, बाज, सैमसंग करके कोई है, समाज। यस, समाज। रोता, रोता, तोता सर, तोता, सरिता मैम बोल रही है, गया, तोता। गया, 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 डॉट हमारी चिड़िया रानी, महादेवी की प्रसिद्ध कविता है। सर डॉट राज रानी हमारी बोल रही है, चिड़िया बया। रानी, बया, बया सर, बया। वेरी गुड जी, बया। चोर, 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 मोड़ सर, मोड़। मोर, यस, लिखिए, आप प्रतिक्रिया देते रहिए, चैट बॉक्स के माध्यम से आप प्रतिक्रिया देते रहिए। अब देखो, हम कहानी, अगली गतिविधि देखो, कहानी खोजो, आईवीएल पर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, रचनात्मक लेखन की ओर बढ़ेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। कैसे, हाउ, देखिए, आपने कहानी का एक मध्य वाक्य दिया, सेंटर सेंटेंस ऑफ द स्टोरी आपने छात्रों के समक्ष रखा। अचानक दरवाजा खुला, भीतर से एक अजनबी आवाज आई, कौन हो तुम? देखो, सेंटर सेंटेंस आपने कहानी का दिया, अचानक दरवाजा खुला, भीतर से एक अजनबी आवाज आई, कौन हो तुम? छात्रों की जिज्ञासा जगेगी, किसकी आवाज है, क्या हुआ है, दरवाजा क्यों खुला, किसकी आवाज और किस लिए आए ही, कौन है? प्रश्न, जिज्ञासा जगेगी क्या नहीं? चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए, चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए, छात्रों में जिज्ञासा जगेगी? हाँ जी, सर राज रानी मैम बोल रही हैं, यह गतिविधि हम कक्षा 9 व 10 में प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा यस, वेरी परिणाम गुड, मिलता है। वेरी गुड, हाँ, दीपिका मैम बोल रही हैं, जी हाँ जगेगी। मधु मैम जी। यस, सैमसंग करके वेरी कोई गुड, है बहुत सर, वो खूब। भी प्रयोग कर रहे हैं जी। देखो, तो प्रश्न आएंगे, ये अजनबी कौन हो सकता है, उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा, दरवाजा किस जगह का था, घर का, गुफा का, या कोई रहस्यमय कोठरी थी? तो इस प्रकार के प्रश्न छात्रों के मन में जिज्ञासा कर लेंगे। परिकल्पना, शायद वो चोर होता, शायद वो चोर था, या कोई जादूगर, या कोई पुराना दोस्त हो सकता है, दरवाजे के पीछे खजाना हो। संभावित कथन, हाइपोथेसिस छात्रों ने बनाया, कहानी के लिए सामग्री तैयार हो रही है। देखो, खोज करना, अब छात्र खोज करेंगे, समूह में छात्र अलग अलग संभावनाएं खोजेंगे, पॉसिबिलिटीज, कौन शब्द को बदलकर क्या हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, ऐसे नए नए सवाल छात्रों के मन में जगेंगे। खोज, इन्वेस्टिगेशन, नया ज्ञान बनेगा, सारी सामग्री एकत्रित होगी, कहानी बनेगी, कहानी शुरू में, मध्य में, समापन कहानी का होगा। अब प्रत्येक छात्र या समूह अपनी कहानी का आरंभ और अंत गढ़ेगा, मध्य तो आपके सामने है, आरंभ और अंत गढ़ेगा। वे इस एक मध्य वाक्य को कहानी की धुरी मानकर आगे बढ़ेंगे। एम आई राइट? नया ज्ञान डेवलप होगा, चर्चा होगी, कहानी साझा करेंगे, कक्षा में कहानी का वाचन होगा, किसने सबसे रोचक मोड़ दिया, किसने नया क्लाइमैक्स कहानी को दिया, क्रिएटिव क्लाइमैक्स, रचनात्मक रूप उसका इस्तेमाल होगा। नए ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे, उस कहानी को हम मैगजीन के लिए देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनामों को कहानी लिखकर संवाद निर्माण में उसका प्रयोग करेंगे। तो न्यू नॉलेज जो आपने जो सीखा है उसे आगे समन्वित करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार आप कहानी खोजो छात्रों के साथ। देखो, कक्षा 9 और 10 के लिए लघु कथा है। इस प्रकार आईबीएल वे से ये 6-7 चरण जो है, छात्रों के अलग अलग ग्रुप बनाइए,
क्वेश्चन मेकिंग, हाइपोथेसिस, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ये सब ग्रुप बनाइए, डिस्कशन, रिफ्लेक्ट, अप्लाई न्यू नॉलेज, और इस भांति उनको ये कहानी पढ़ाइए। आपकी कक्षा बहुत ही रोचक होगी, आकर्षक होगी, छात्र हिंदी में रुचि लेने लगेंगे। देखो, उसी प्रकार कक्षा 1 से 5 तक मेरी जो बहनें यहाँ पर उपस्थित है, जो बेस है, हिंदी का बेस सक्षम कर रही है और मजबूत कर रही है, उनके लिए मैं ये पहेली लेकर आया हूं। न की पहेली उत्तर के अंत में न है। देखो, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, चिंतनशीलता है, सोच है। देखो, न की पहेली लास्ट में न आना चाहिए, लास्ट एंडिंग लेटर शुड बी न। वर्ड्स सोचना है। सोने की होती है क्या, बताइए, सोने की क्या होती है? सोने की चेन। क्या होती है? चेन सर, हाँ, मैसेज आ रहा है। चेन चेन। नहीं, सोने की चेन भी होती है, और सोने की होती है सलमान, आमिर, शाहरुख, क्या खान। है, खान, खान खान। सोने की होती है खान। कपड़े का होता है क्या? कपड़े का क्या थान होता सर, है? थान। थान बोलते थान, हैं सर। यस, खान खान। कपड़े का होता है थान। सदा बड़ों को देते हैं सम्मान। सम्मान या मान। आओ हम ले सर, मन मान भी में, कमेंट। आओ हम ले मन में, मन में सर, ठान हो डिटर्मिनेशन। सकता है सर, मन में ठान ठान हो ठान सकता है। ठान। देश की अमित। खातिर देंगे। आइए, चैट बॉक्स के जान। माध्यम से आइए। जान, श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। देखिए मेरी, श्रद्धा से करते हैं। राजा बलि, सर, हिंट्स दी मैंने। राजा बलि, प्रणाम। श्रद्धा से करते हैं हम। सर, दान, दान, दान दीजिए, क्या है? दान। 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 तंदूरी द रोटी चीफ होती सर है। ने बोला दान। यस, वेरी गुड जी। तंदूरी रोटी होती है। सर, आसिफ सर बोल रहे हैं नॉन। नान, सही बात, सही फरमाया आपने, वेरी गुड, वेरी गुड। जाड़ों में कटता है, जाड़ों में कटता है, जाड़ों में कटता है। धान। सर, आसिफ सर बोल रहे हैं धान, धान। सुनने को होते हैं, सुनने को होते हैं। कान सर, कान। कान। देखो, हटके है। देखो, शब्द भंडार विकसित हो रहा है, जिज्ञासा जग रही है, चिंतनशीलता का विकास हो रहा है। सही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सभी की इस पर? देखो, अब मुहावरों पर भी जिज्ञासा और सोच को विकसित करेंगे। देखो, संख्याओं से मुहावरे बनाइए। पढ़िए बहन, क्या है? जी सर। संख्याओं से मुहावरे बनाइए। हाँ, डैश आने सच। हाँ, क्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी? बताइए चैट चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे। सर, 16 16 आ रहा 16। है सर, मधु आगे, सर वेरी गुड, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे बढ़िए। दूसरा है डैश दिन की चांदनी। हाँ, 4 दिन की चांदनी सर, कमेंट यस, दीपिका आगे मैम ने जाइए। दिया है। कौड़ी का इंसान। हाँ, 2 कौड़ी का इंसान सर। 2 कौड़ी का इंसान। 100 डैश होना। बहू। डैश होना। हाँ, 1 दर्जन, 1 दर्जन को सौ क्या कहते 12 हैं? होना सर जी। 112 राजरानी होना। मैम बोल रही है 12। यस, वेरी गुड। डैश नगद, डैश उधार। भारी सर। डैश नगद, डैश उधार। 9 2 11 सर। 9 2 11। और मैम एक ने अनार, एक अनार। 100 बीमार सर। 100 बीमार। देखो, जिज्ञासा क्रिएट हो रही है, छात्र छात्र की सोच विकसित हो रही है। इस प्रकार मुहावरे पढ़ाइए। कैसे लगी ये गतिविधि आपको? जी, अच्छा। आगे देखिए, अपठित बोध, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, कक्षा 9 और 10 के लिए 14 मार्क का है। देखो कैसे करें इसे। तो देखो, वही है, वो वही सारी स्टेप्स है। तो उस स्टेप्स को हम देखते हैं। देखो, अब मुझे अनसीन पैसेज करवाना है, अपठित गद्यांश। तो मैंने छात्रों के समक्ष एक चित्र दिखाया। किसका चित्र है ये? देखिए, जिज्ञासा जगा रहा हूं मैं छात्रों में। यस, बताइए। सर, घोंसला। चिड़िया का घोंसला, घोंसला किसका है। घोंसला है? अभी नाम गया उस पक्षी का।
गया गया से दुकान किया था हमने। भैया सर। बया 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 हमारी चिड़िया रानी, ये बया का घोंसला है। किसका घोंसला है? भैया। बया का। देखिए, अब इस पर बया पर ये घोंसला छात्रों के समक्ष चित्र रखेंगे और बाद में हम उनके सामने ये अनसीन पैसेज रखेंगे जो बया के बारे में है, उसके घोंसले के बारे में। छात्र इसे पढ़ेंगे, एक्सप्लोर द पैसेज। इसमें नए शब्द आए हैं, देखो जरा, कोई मुहावरा इसमें आया है, देखो कोई मुहावरा आया है, कोई एक कथन भी आया है सुविचार के जैसे, जरा ढूंढिए उसको, देखिए। देखिए, एक्सप्लोर करेंगे छात्र। देखो, कोई मुहावरा है, कोई सुविचार है। सुविचार सर, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है, सही बात है। मुहावरा देखिए आगे जाकर लास्ट लाइन में, देखिए देखिए मुहावरा देखिए इधर, देखो मैंने मार किया, क्या आया है? जी सर। सचमुच पसीना बहाना। पसीना बहाना, बराबर है। तो देखो छात्र इसे पढ़ेंगे, नए नए शब्द आए हैं, उन्हें अधोरेखांकित करेंगे, अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब आपको इस पर प्रश्न निर्माण करने हैं। देखो, हाउ टू डू दिस अनसीन पैसेज आईबीएल थ्रू आईबीएल। तो देखो, पहले छात्रों ने पढ़ा, एक्सप्लोर किया, पहले आपने जिज्ञासा जगाई, चित्र दिखाया, फिर इसे पढ़ा, नए नए शब्दों को आपने अंडरलाइन किया, फिर प्रश्न निर्माण, जनरेट क्वेश्चन। छात्र अपने प्रश्न बनाएंगे, 4-5 प्रश्न छात्र क्या बनाएंगे, हर ग्रुप में करेंगे, 2-2 3-3 छात्रों का एक समूह होगा, ग्रुप होगा, प्रश्न निर्माण करेंगे, जनरेट करेंगे प्रश्न। छात्र अपने प्रश्न तैयार करेंगे। देखो 6 to 8 में भी छात्र स्वयं अनसीन पैसेज पढ़कर प्रश्न बनाएगा, ये ग्रुप हुआ। फिर अगला ग्रुप क्या करेगा, हाइपोथेसिस, संभावित कथन, जो सारे प्रश्न जो है एक कथन बताएगा। अभी कथन क्या हो सकता है इसका, मुझे बताइए। ये बया के घोंसले के बारे में है, तो कथन क्या हो सकता है इसका, मुझे बताइए आप। यस, बताइए कथन क्या हो सकता है। बताइए परिकल्पना आपकी, हाइपोथेसिस क्या हो सकता है इसमें। यस, हाइपोथेसिस क्या हो सकती है। यस, बताइए। यस, कोई कथन क्या आएगा, लिखा है किसी ने कुछ चैट बॉक्स के माध्यम में। जी सर, मेहनत का हाँ, फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। आगे, रूपाली मैम ने लिखा है घोंसला किसने बनाया। घोंसला किसने बनाया। राज रानी मैम ने और लिखा है बया पक्षी बहुत मेहनती होते हैं सर। हाँ, मेहनत परिश्रम का प्रतीक है, परिश्रम का प्रतीक है पया। वेरी गुड। तो आपने अपने सर अपने मधु। संभावित कथन बनाए, हाइपोथेसिस बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर अगला ग्रुप जो है, जांच और उत्तर खोजना, इन्वेस्टिगेट एंड आंसर, कि क्या सचमुच बया जो है प्रतीक है मेहनत का और परिश्रम का। और आपको पता है घोंसला कौन बनाता है बया का, मादा बया बनाती है या नर बया बनाता है। घोंसला कौन बनाता है, आपको पता है किसी को। जी सर, नर नर बनाते हैं सर। नर बनाता है, नर बया जो है वो घोंसला बनाता है और मादा को आकर्षित करता है। तो इन्वेस्टिगेट और आंसर होगा। फिर विश्लेषण और चर्चा होगी, क्या आंसर लिखा है, कथन सही है या नहीं, कि बया सचमुच घोंसला बनाती है, बया बनाता है, वॉट एवर इट इज, परिश्रमी है, मेहनत का प्रतीक है, बराबर है। तो विश्लेषण और चर्चा होगी, एनालाइज और डिस्कस करेगा। देखो अनसीन पैसेज अलग अलग चरणों में घूम रहा है, अलग आईपीएल के इर्द गिर्द आपका अपठित गद्यांश घूम रहा है। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन 6 स्टैंडर्ड से यदि हम इसे इस बात की पढ़ाएंगे ना, तो कक्षा 9 और 10 के छात्र सीबीएसई में जिस प्रकार का अपठित गद्यांश आता है 14 मार्क का, उससे सवाल कर पाएंगे।
जब उनकी जिज्ञासा और सोच को कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक है उसे क्या करेंगे, परिष्कृत करेंगे। देखिए, जीवन से जोड़ेंगे। यदि बया एक पक्षी होकर मेहनत करती है, सुंदर घोंसला बनाती है, तो हम तो हड्डी मांस के इंसान हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? एम आई राइट? तो सर वास्तविक जीवन से उसे जोड़ेंगे, सही है। फिर उसका रिफ्लेक्शन करेंगे। ईमेल है छात्रों को, क्या है, अपने मित्र को एक ईमेल लिखिए जिसमें आप बया पक्षी के सुंदर घोंसले और उसकी मेहनत से मिलने वाले संदेश के बारे में बताइए। आपका ईमेल भी हो जाएगा। कक्षा 9-10 में आपको ईमेल भी है, सुंदर घोंसला और मेहनत से मिलने वाले संदेश के बारे में बताएंगे। कैसे लगी ये गतिविधि आपको आईबीएल के जरिए, ये बताइए अध्यापक। चैट बॉक्स के माध्यम से आइए, अच्छी लगी ये गतिविधि? ये जी सर, बहुत रोचक लगी। क्या बहुत लिखा है? रोचक थी, रूपाली मैम बहुउद्देशीय बोल है। रही हैं। जी सर, हाँ, बहुत यस बढ़िया सर, वैशाली मैम बोल रही हैं। यस यस। सैमसंग जी करके जी कोई जी, है सर, बोल रहे हैं अद्भुत है सर। अद्भुत है। यदि आप मुझे राजा, बताइए, रेज हैंड कीजिए यदि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो सचमुच रेज हैंड कीजिए वहां पर चैट बॉक्स के माध्यम से, या उधर लिखिए, थम्स दीजिए, अपना अंगूठा दिखाइए। आपने कुछ नया सीखा है सभी ने, तो थम्स दीजिए उधर। यस, लिखिए कुछ ना कुछ। जी सर, यस, जी सर। मैं जानना चाहता हूँ। सुनीता मैम बोल रही है सर, बहुत कुछ नया सीखा है सर। नया सीखा आप सभी ने। पूरी पीपीटी आपको जी सर, मिलेगी। कोई लिख रहा है पीपीटी चाहिए, सर भेजेंगे आपको। जी सर, जी सर। आसिफ सर पूछ रहे हैं सर। यस, लिखिए, मुझे चैटबॉक्स के माध्यम से जानना है। यस, बहुत खूब। चलो, ये सब जी सर, हमने बहुत सीखा। अच्छा किया। अब मंच आपका है। अब जहां पर श्रोतागण हैं जो सुन रहे थे, अब आप एक एक करके आएंगे, प्रश्न पूछेंगे। जी, सलाम सर। प्रश्न उत्तर कालखंड की तरफ चलें अभी सर? G, हाँ जी, you यस can यस take यस one मैम। or two questions. Yeah, those who want to यस। ask, they can raise their hands. प्रतिभागियों से निवेदन है, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। वो सर्टिफिकेट या लिंक पोस्ट किया चैट बॉक्स में। यस यस सर, इट इज देयर, यू शेयर्ड इट ऑलरेडी। Any questions? Please raise your hands. Yes, Raja Rani. No, she has gone. Okay, I think it is यस, आपका स्वागत है जी। self-explanatory. Very well, you know. Yeah, Raj Rani. Raj Rani, you can speak. नमस्कार सर, आप सभी को नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाती हूँ और हाँ जी। यहाँ इस स्तर पर आकर एक बहुत ही समस्या जो बड़ी उत्पन्न होती है वो ये होती है कि बहुत से बच्चे याद तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर लिखते वक्त उनकी जो वर्तनीय अशुद्धियां वो ज्यादा होती हैं। बहुत अधिक प्रयास अच्छा, करने पर भी उनमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाता। हालांकि बहुत हाँ कोशिश की जाती है कि रोचक तरीके से करवाया हाँ, जाए, रोचक लेकिन कहीं तरीके न से। कहीं जी, हाँ तो सर जी। एक सुझाव कुछ ऐसा दीजिए कि हम बच्चों की इस जो कमी को दूर कर सकें और थोड़ा बच्चे भी उसमें रुचि उत्पन्न कर पाएँ अपनी तरफ से। यस, आप नवाचार का मार्ग अपनाइए। रटंत शिक्षा प्रणाली को छोड़ दीजिए। याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, इस भाव को हमें निकाल देना है। छात्र स्वयं, जैसे हरिहर काका है, कक्षा 9वीं और 10वीं को आप पढ़ाती है, हरिहर काका है, तो हरिहर काका का जो पाठ है आप देखिए कि उस संचयन में दिया है। कितने पेजेस है कम से कम, क्या आप बता सकती है राजरानी जी? कितने पेजेस हो जी, गए कम कम से कम अंदाजन? 8 7-8 पेजेज़ हैं सर। उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा भी हो गए, जी, बराबर है। तो वो बोझिल लगता है पढ़ने के लिए। तो आप उसे कविता के माध्यम से पढ़ाइए, उसकी कविता बनाइए हरिहर काका पर। हरिहर जी, काका को कविता के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, जो सर उसके आंसर है। हाँ, जी, काव्य विधा सर के जरिए, छोटी छोटी विधा के जरिए उसे पढ़ाइए। काव्य विधा में उसे ट्रांसफर कर दीजिए और छात्रों के सामने रखिए। या आईबीएल के जरिए आप क्वेश्चनिंग, छात्रों को एक एक पाठ पढ़ने के लिए दीजिए, एक एक प्रसंग।
एक एक प्रसंग दीजिए हरिहर काका का, और एक 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 जो ग्रुप है वो प्रश्न तैयार करेगा, दूसरा ग्रुप हाइपोथेसिस परिकल्पना करेगा, तीसरा इन्वेस्टिगेट करेगा, खोज करेगा। इस प्रकार आप आगे जाइए, एक्सप्लोर करेगा, नया ज्ञान निकालेगा कि हरिहर काका इस पाठ को आज के संदर्भ के साथ किस प्रकार आप समन्वित कर सकते हैं। क्या आज भी हमारे समाज में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय है? इस भांति आप करवाइए तो अपने आप ये उत्तर जो है, ये पाठ की जो समरी है, छात्रों के मन में चिरकाल तक रहेगी, उसे याद करना नहीं पड़ेगा। जब ये प्रयास होगा तब वो कक्षा आपकी रोचक होगी। जी सर, हमने ना इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रयास किया था, आपसे साझा करना चाहूंगी। हाँ जी जी, कि बताइए, आपका स्वागत है जी। हरिहर काका की कहानी वहां समाप्त होती है जहां वो अंत में लेटे होते हैं। तो बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि इसके आगे क्या हुआ मैम। तो मैंने ही बच्चों से कहा आप इसका सुखद अंत कैसे करना चाहेंगे, तो आप सुखद अंत बनाकर लाएं। तो सर यकीन हाँ, तो मानिए कहानी बच्चों को ने आपने नया मोड़ दिया, कहानी जी को आपने बहुत ही नया मोड़ दिया। अद्भुत उत्तर आए। बच्चे अपने सोच और विचार के अनुरूप, किसी ने उनको बताया कि भाइयों ने क्षमा मांगी, महंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। और इसके अलावा सर हम दो दो पैराग्राफ पढ़ाकर उससे बच्चों से स्वयं प्रश्न निर्माण और उनका उत्तर भी खोजने के लिए देते हैं। यस, उसी बात के हमने करवाया था इसी पर। यदि हरिहर काका के जमाने में, समय में मीडिया होती तो क्या होता, और ये बोर्ड में भी प्रश्न आ गया है। जी जी ये प्रश्न बोर्ड में भी आ गया है। मीडिया होती तो क्या हरिहर काका का इतना बुरा हाल होता? जी जी उसी भांति गतिविधि के जरिए करवाइए। से जी सपनों के से दीन है, टोपी जी शुक्ला है, इनको जी एक एक लाइन पढ़ाने से बजाय मैं तो कहता हूँ कि गतिविधि के जरिए करवाइए उसे। जी अलग अलग आईबीएल इज अ मेन सोर्स। आईबीएल को आधार बनाइए, जिज्ञासा जी निर्माण कीजिए छात्र में, तो आपका रोचकता होगी। एआई की दुनिया के छात्र है, ये तकनीकी जी की दुनिया के छात्र है, तो इस भांति उनको आप हिंदी की ओर आकर्षित करिए। बहुत खूब, जी आपसे बात करना अच्छा लगा राजरानी जी। पर आपका मुझे भी अनुभव भी बहुत हमने अच्छा साझा किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आगे Okay, Pooja ma'am, we can wind up. We can wind up, sir. Yes, yes, yes. ओके ओके सर। हम कार्यशाला के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। मिलिंद सर, आज के इस विषय पर हमें रूबरू कराने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आप सभी का धन्यवाद जी। आपने मुझे सुअवसर प्रदान किया, आप सभी का धन्यवाद जी। जी सर, आज आपने बहुत अच्छे से संभाला सर। बीच में हम जो है डिस्कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन आपने संभाला, उसके नहीं लिए भी नहीं, कुछ बहुत नहीं, वो बहुत धन्यवाद तकनीकी सर। खराबी तो आती जाती रहती है, उसपे कुछ नहीं जी। हमारा सौभाग्य है सर कि हमें आप जैसे अनुभवी बुद्धिजीवी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव यूं ही बना रहे, यही जरूर मेरी जी, कामना जरूर है। जी, जरूर जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सलाम सर। शिक्षक समूह के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अंत में कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय रही। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन चर्चा व चुनौतियों के समाधान हेतु सलाम सर और मिलिंद सर के मार्गदर्शन में हम शीघ्र इस मंच पर पुनः एकत्रित हों, इस आशा के साथ मैं माननीय सलाम सर से सत्र के समापन की इजाजत चाहूंगी और दो पंक्तियों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। सलाम सर। Yeah, thank you, thank you. Thank Yes, you. sir. बहुत धन्यवाद मिलिंद जी. Very, very, useful. So the preparation, must have taken a lot of time. You have put in a lot of efforts. We could see, but it was great learning. A lot of learning was happening. So everybody, was being enriched by your presentation. The energy level you have shown, depicts your dedication, your commitment to education. So, Zor Talia, on behalf of everybody, Thank you. wonderful for the wonderful presentation and great effort. And this is actually, kind of,
contribution to education, to the Hindi loving educators. So thank you so much, sir. I hope to see you once again with another wonderful topic like this. Your creativity is so great. In the form of kavita, poem, and all these puzzles you have given samasya, a lot of puzzles, and also that's wonderful, sir. Thank you so much. And equally जी, important is Pooja madam. Thank you for your यस पूजा मैम ने भी बहुत अच्छा किया। yeah, सर मिलिंद सर, मैं 2 पंक्तियों को आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। हाँ जी, Yeah, जरूर no, जरूर, आपका स्वागत है जी। जी no सर। problem. Yeah. जी सर, धन्यवाद सर। आंखों में कुछ सपने लेकर, आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज वाह सा वाह, तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तुम तक मुझको रोकोगे। कब तक रोकोगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत Yes, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. Yeah, very beautiful. Thank बहुत you. खूब, बहुत खूब सी। तुम मुझको कब तक रोकोगे, सही Yeah, बात है। correct. थैंक यू जी जी, सर। थैंक यू जी। Thank you, धन्यवाद Pooja सलाम ma'am. सर, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद जी, everybody. धन्यवाद जी। धन्यवाद. Yeah, good night. यस, Good गुड यस night, नाइट सर। जी, गुड everyone. नाइट।